because we are going to become a teacher and we have so many responsibilities in our shoulders. And this is the same thing that said in the National Education Policy in 1986. Teachers are the builder of nation. After that, after 34 years, we have a National Education Policy 2020, after a gap of 34 years. The education system which we have received, which we are receiving, may be a dream for the coming generations. What are the education system at our times? Now we think about the education system in the beginning. If we ask our parents, if we ask about the elders or maybe grandfathers and mothers, that what was the system of education at your times, then say that there was a very school system was very limited to the people. Accessibility is very limited. The education is not given to all individuals rights. If you go through the history of education also, the women are not considered for the education especially, and some of the educationists, philosophers, if you go through the history, they are also not in favor of the women education. That is also one of the parts. Anyhow, the education system which they have received, very limited resources at that time. We have also faced some of the things. The fee structure was very limited, very few people were able to do, and we feel proud anyhow. And very proudly we say that my father, my mother is a graduate of 1970, 1980. Very proudly we are saying. But nowadays if you ask anybody what is your qualification, they simply say I am a PhD. Okay, PhD. But not taking consider that a PhD is not that is the highest degree that considered right now in the education field. But if anybody is doing PhD, okay. But see the earlier times, when we are very saying that proudly that okay, 1980, that graduation matters a lot. 1970, matric matters a lot. 10th class pass. Now what I am saying, trying to say regarding this, the background of this system, the topic which I have taken is that empowering tomorrow. How we can empower tomorrow with special reference to the youth. And youth, we are the youth. How we can empower our tomorrow. Whatever the education system we are going to transfer, the transformational changes. Is it? The transformational changes we are going to take हमारे पास ट्रेंड्स नहीं थे. बच्चों को कैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम दे पाएंगे? हम लोगों ने अपने अपने टेक्निक्स अप्लाई की. ये भी टेक्निक है. लेकिन हम लोगों ने बच्चों को एजुकेशन को प्रभावित नहीं होने दिया. दैट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ ए टीचर. तो इम्पैक्ट तो पड़ा. ऐसे ही बहुत सारे इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के. मतलब कहने का मतलब कि इम्पैक्ट ये नहीं कि सिर्फ पैंडेमिक है. एजुकेशन का जो मेन रोल है हमारे फ्यूचर में, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं. तो हम लोग कैसे उस एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर के जाएंगे? तो मैंने कहा कि एजुकेशन का जो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो रूल है, उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा और जो अपने यूथ हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा. यूथ को क्यों एम्पावर करना पड़ेगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन. दिस इज सब थीम ऑफ योर सेमिनार फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस नोट. Today's topic for discussion between the people, empowering youth. How we can empower the youth, and what is the main concern for that making the youth empowered. जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास अभी है और जो पहले था जिसको बोलते हैं 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन. आपको पता चला कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज हो रहा है. अब हम 5+3+2 नहीं हो रहा है ना. तो इस पर भी बहुत ये क्रिटिकल केस है कि भाई इसमें गवर्नमेंट को सुनने की जरूरत है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नए फीचर्स है एनईपी 2020 का जो हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है ना. तो डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है ये, है ना. डिजिटल सोशल लर्निंग की बात कर रहा है ये, है ना. जो GER मैंने बताया अभी ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, उसकी बात कर रहा है. 35 तक आया है, 50% भी है, 50% तक बढ़ाना है हमको. ठीक है.
उसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस स्टूडेंट्स की बात कर रहा है ना। एनकरेजमेंट टू यूज इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड किया गया है ना। और एक और बात कहूँ कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको भी यूनाइट करने की बात कही जा रही है ना। और एक्रेडिटेशन जो है अभी आज की डेट में 2 एक्रेडिटेशन बॉडी है ना, एक है NAAC है ना और एक है NAB है ना। तो अभी जो है उसको सिंगल यूनिफॉर्म किया जा रहा है और NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, ये प्रपोज है। ठीक है, इसमें भी अभी कल से ही एनईपी के बारे में इंटरनेशनल और आज भी इंटरनेशनल नेशनल स्पीकर से है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल रहा और थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं। एनईपी यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एनईपी को इम्प्लीमेंट की जहाँ बात आती है या उसको इंटरेस्टिंग इफेक्टिव बनाने की जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं ई रिसोर्सेज का यूज होता है। ई रिसोर्सेज टॉपिक है इफेक्ट और ई रिसोर्सेज इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। अगर ई रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो इससे हम बच्चों की जो लर्निंग होती है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और साथ में क्वालिटी दे सकते हैं। तो इफेक्टिव रिसोर्सेज जो है उसको दो कैटेगरी में दिया गया है, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन अगर ई रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो इसमें ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई मेल, ई लाइब्रेरी, ई फोरम, ई लर्निंग, ई सोर्स, ई डिक्शनरीज, मोबाइल SMS, साथ में सर्च इंजन और डेटा सर्च इंजन आते हैं। अगर ऑफलाइन ई रिसोर्सेज हम बोलेंगे तो इसमें हमारा ई डिजिटेशन, ई थीसिस, ई मैगजीन्स और साथ में कुछ और भी ई रिसोर्सेज को क्या करते हैं कि उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 45 मिनट का जो क्लास होता है और आए 4 महीने इंटर्नशिप जाते हैं तो उनका एक कंप्लेन होता है खासकर जो अभी गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को दिया जा रहा है। बीएड स्टूडेंट आपके साथ ये प्रॉब्लम होते होंगे कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लास में और किसी न किसी बहाने वो क्लास से बाहर जाते हैं। क्यों हो सकता है कि वो जो हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ई रिसोर्सेज का यूज करें और उसको अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं और हमारा जो मेन एम होता है कि बच्चों को नॉलेज देना है वो कंप्लीट और कंप्लीट होता है। तो इसमें यहाँ से टीचिंग लर्निंग तो ज्यादा टीचिंग लर्निंग करना है डिजिटल मटेरियल का यूज करके हम कोई भी मटेरियल्स को ई रिसोर्स का यूज करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से।